عید کے رنگ کے سنگ عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بقرہ عید کے رنگ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ بھائی میرے تو مائک لگا ہے، میری تو آواز جا رہی ہے چینل کے ناظرین کو، آپ کی آواز نہیں جا رہی ہوگی. ذرا سا مائک لے آؤ گے؟ پکی بات ہے. چلے جی، ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عمر. عمر بھائی. اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد صوبان. محمد صوبان. آپ کا؟ انس. محمد انس. ٹھیک ہے، محمد بھی ساتھ بولتے ہیں. آپ کا نام اگر محمد ہے تو محمد بھی ساتھ بولتے ہیں. اور آپ بھی نام بتا دو. محمد شہاب. محمد شہاب بھائی. جی. محمد سعد. محمد سعد بھائی. محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. اچھا پیارے پیارے بچوں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ آج آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں جناب؟ ابو کے ساتھ آئے. ابو کے ساتھ آئے ہیں. کیا کرنا ہے بھائی؟ جانور دیکھنا ہے. جانور دیکھنا ہے. صرف دیکھنے بھی آئے ہیں یا کہیں لینے بھی آئے ہیں؟ لینے کا بھی ارادہ نہیں. ابھی فی الحال ارادہ نہیں ہے، فی الحال دیکھنے کے لیے آئے ہیں. جی، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں. جی، جانور دیکھنے ہیں. صرف دیکھنے آئے ہو، لینا نہیں ہے؟ ابھی فی الحال نہیں لینا. چلیں انشاءاللہ لے بھی لیں گے. جی حذیفہ بھائی. مویشی منڈی دیکھنا ہے اور بڑے بڑے جانور دیکھنے ہیں اور خوبصورتی جانور کی. جانور کی خوبصورتی دیکھنے آئے ہیں. کیسے لگے آپ کو جانور؟ خوبصورت جانور ہیں یہاں پر؟ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جانور. اچھا جی، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہماری شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے پیارے مفتیان اکرام بھی موجود ہوتے ہیں. مفتی محمد شفیق اتاری اور مفتی محمد کفیل اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری معذرت، آپ کو ہماری وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑا. ہم کچھ بچوں سے باتوں میں مصروف ہو گئے. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. مفتی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین سے ایک بات کہی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بڑے بڑے جانور تو دکھائے ہیں لیکن ایک چھوٹا جانور بھی ہمیں دکھانے کا ارادہ ہے. اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ چلیں اس جانور کی طرف. بکرا ہے کیا ہے؟ بکرا نہیں، بکرا نہیں کہیں گے اس کو. اچھا، ہاں ہے چھوٹا، چھوٹا ہے. 4 پاؤں بھی اس کے ہیں اچھا، اور 2 کان ہیں. تو جانور تو بڑے چھوٹے ہوتے ہی ہیں، وہ کوئی خاص ہے؟ وہ اسپیشل ہے. دیکھتے ہیں، چلو پہ چلتے ہیں. آ جاؤ پیارے بچوں. چلیں، جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جو نئی جگہ ہو ہمارے لیے، تو بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیا کرتے تھے. مفتی صاحب، اگر ہمیں بھی اس جگہ کو گواہ بنانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گواہی کے طور پر جیسے عام جگہوں کو، پہاڑوں کو، دیگر درختوں کو ایمان پر گواہ بناتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جتنی جگہیں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو وہ اب جگہ ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں نا یہاں پر ہم. ہاں، جگہ فرسٹ ٹائم ایک طور پہ جو منڈی کراچی میں یہ ہے، اور پھر اتنے لاکھوں لاکھ یہاں پر وہ جانور ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پہ قربان ہونا. ارے واہ واہ واہ. یعنی ایک طرح کی جو قربانی کا درس ہے نا اس میں، اور یہاں آ کر جو ایک پتہ چلتا ہے ویسے عام گلی محلوں میں 2-4 جانور تو ہوتے ہی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو یہاں مسلمانوں کا شوق ہے، جو پالنے والے ہیں ان کا بھی شوق، اور ان کو خریدیں گے لوگ ماشاءاللہ آ کر، ان کا بھی ایک شوق قابل دید ہے. مفتی صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جانور کی اسکن بہت زیادہ چمک رہی ہے. ذرا یہ بیچنے والوں سے پوچھیں کہ اس کی اسکن کو کیا چمکانے کے لیے اس پر کوئی پالش لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدیل قریشی میرا نام. عدیل قریشی بھائی. یہ جانور ماشاءاللہ آپ کے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، یہ جانور اس کی اسکن جو ہے وہ تھوڑی ڈل سی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بال تھوڑے ڈل سے ہیں، لیکن اس کے بال شائن کر رہے ہیں اور اس کے برابر والی کی تو اور زیادہ شائن کر رہے ہیں. کون سی پالش لگاتے ہیں؟ پالش تو نہیں لگاتے، بس ان پر ان کی خدمت کرتے ہیں. سرسوں کا تیل پلایا جاتا ہے چمک کے لیے. اچھا. ہاں جی، سرسوں کا تیل خدمتیں بہت کراتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسکن کا انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے، وہ اس کو چمک پیدا کرتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، میڈیکل بولتا ہے
लेकिन ये है कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखार अल्लाह ने पैदा किया है। नुखरी नस्ल है, इसको चमकदार बनाने के लिए दूध पिलाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, सरसों का तेल पिलाया जाता है। सरसों का तेल दूध पिलाया जाता है, सरसों का तेल पिलाया जाता है और इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन बढ़ते हैं जरा मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, ये चमकाने के लिए जानवर को इंजेक्शन लगाना, क्या फरमाएंगे? तिब्बी एतबार से है कि अगर मेडिकल के एतबार से जो है उसमें कोई जो है वो हरज जो है वो नहीं है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो लगाने में भी हरज जो है वो नहीं है। इसी तरीके से जो इन्होंने दूसरे दो देसी तरीके बताए कि जनाब दूध या जो है वो सरसों का तेल जो है वो पिलाते हैं, तो उसमें भी कोई हरज नहीं। अब इनकी सेहत के लिए बेहतरी रहने के लिए हर तरह के वायरस से ये बचे रहें, अगर इनकी भी कोई वैक्सीनेशन है तो ज़ाहिर है। बहुत सारे जानवरों की जो पलकें होती हैं, आईब्रोज जो होती हैं वो वाइट होती हैं, उसके लिए कौन सा मेकअप लगाते हैं? उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसको चमकदार बनाने के लिए, शाइनी करने के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज बाल भूरे हो जाएं तो वो नस्ल ही है, अच्छा, वो भूरी नस्ल है, ठीक है। गुलाबी नस्ल वो भी जब कहते हैं पैदा उसको। होती है तब से उसके वाइट तब से होते ही हैं ऐसा या है। बुजुर्गी आ जाती है? बिल्कुल नहीं, बॉर्न जब होती है जब से ही वो गुलाबी होती है। अच्छा, जब बॉर्न होती है तब से ही वो गुलाबी होती है। अब आइए नाजरीन, जिसका हमने आपसे कहा था, हम आपको उस जानवर की तरफ लिए चलते हैं और वो जानवर अब हमसे दूर नहीं है। ये आप मेरे, ये देखिए जनाब, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है ना? लेकिन इसका अंदाजा जरा ये लगाइए, ये हमारे उमर भाई खड़े हैं और ये उमर भाई से भी छोटे हैं। ये देखें जरा, ये उमर भाई इस पर हाथ रख के खड़े हैं। मैं एक सवाल कर लूं? बिल्कुल, आप एक नहीं दो करें जनाब। उसके ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं? किसके ऊपर बैठना है भाई? जानवर के ऊपर। पक्की बात है, ये बाइक थोड़ी है। चलें जी, मुफ्ती साहब से सवाल कर लेते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए, ये इतना प्यारा जानवर है और बच्चों का तो दिल आ गया है कि इस पर बैठकर एक राइड होनी चाहिए, एक सवारी होनी चाहिए। क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि इस पर बैठा जाए? घोड़ों पर तो बैठा जाता है, ऊंट पर बंदा बैठता है, क्या इस प्यारे से जानवर पर, छोटे से जानवर पर बैठना? जानवर पर भी बैठा जा सकता है, लेकिन कुर्बानी का जानवर ये बैठने के लिए नहीं है। तो जो जानवर आप कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो आप सवारी नहीं कर सकते। वैसे जो है वो जिस तरह आप जो है वो ऊंट पर बैठ रहे हैं, इसी तरह किसी का अपना पालतू जानवर है, कुर्बानी की नियत नहीं है, तो वो उसके ऊपर बैठ भी सकता है। आमतौर पर लोग जो बैल वगैरह पालते हैं तो ज़ाहिर है उसके हल चलाने के काम वो बैल से ही लेते हैं, उसके ऊपर भी बैठते हैं। इसी तरह भैंस हैं या भैंसें हैं तो जो लोग इनको मुख्तलिफ जगहों पे चराने के लिए लेके जाते हैं, बल्कि पानी के अंदर उतरते हैं तो इन्हीं पे बैठ जाते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है इन्हीं, ये उसको पूरा पूरा दरिया अबूर करवा देते हैं। तो ये डूबता नहीं? नहीं, ये बड़े तैरने का तरीका है इनको, भैंसों को। अच्छा, ये पानी में नहीं जाएगा, यानी जो ये पानी बैल में नहीं वगैरह ये पानी में नहीं जाएगा। जो भैंस की नस्ल है, भैंसें हैं ये सब, तो ये भैंस तो तैरती है, भैंस को तो मजा आता है। पानी में तो आप बैठा दें उसको, और बैल वगैरह बछिया ये इनको नहीं, पानी में नहीं, ये पानी से घबरा दे। चलें, आज हमारे मुफ्ती साहब ने हो सकता है कई सारे नाजरीन को एक नई मालूमात दी हो। जी हाँ, अगर कहीं ऐसा वक्त आ जाए कि सामने पानी ही पानी हो और आपके पास कोई सवारी ना हो, तो फिर आपने सवारी तलाश नहीं करनी है, भैंसा भैंसी तलाश कर लीजिएगा। आप एक बुफेलो तलाश कर लीजिएगा, उस पर बैठ जाइएगा, वो आपको दरिया अबूर करवा देगा, पानी अबूर करवा देगा। मुफ्ती साहब, असल मेरा सवाल इसके हवाले से है, क्या इतने छोटे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? देखें, ये इसकी नस्ल है, जो छोटापन होता है। असल जो इस कैटेगरी के जानवर बैल और इसमें जितने हैं, तो ये ज़ाहिर है इसी नौ की है, कैटेगरी के हैं। इसमें उम्र का एतबार देखा जाएगा। अगर ये 2 साल उम्र पूरी हो गई तो ठीक है, बिल्कुल इसकी कुर्बानी हो सकती है। ये बताइए कितने साल का होता है? ये 6 दांत है। 6 दांत है? जी जी। अच्छा, और ये 2 दांत है। ये 2 दांत है जी। ये कितने साल, और ये कितने साल की है? ये तकरीबन 3 साल या 32 महीने की होगी। ठीक है। और ये मेरे ख्याल 4 या 5 साल की होगी। 4 या 5 साल की होगी? जी जी। ये छोटी क्यों रह गई है? ये इसकी नस्ल है, इसको गेनी कहा जाता है। अच्छा जी, वो सब गिनी कहा जाता है इसे। गिनी गेनी तो वो होती है जिसे सोने के सिक्के को गिनी कहा जाता है। भाई हमने तो ये सुना था। ये जानवरों में गेनी आती है। अच्छा, जानवरों में ये गोल्ड का पीस है, ऐसा का? जी जी। उससे तशबीह दिया हुआ यूं। और ये कम नहीं है, ये यूनिक है, तो ये महंगा भी होगा। यही महंगी है? जी जी, ये महंगी है। क्यों महंगी है भाई? गोश्त तो है नहीं इसके अंदर इतना। ये एंटिक है ना, यूनिक है। अच्छा, यूनिकनेस तक पैसे हैं? जी जी। एंटिक पीस है? जी। अच्छा, कितने की होगी वैसे ये फाइनल देनी 5 लाख की। 5 लाख रुपए की? जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने यहाँ पर रेट पूछे हैं और आप आए हैं लेने के लिए, आए हैं 5 लाख रुपए? मैं इसके अब पूछने की नहीं आया हूँ कि ये छोटा जानवर है, इसका तो एक ही हिस्सा होगा ना। है, एक हिस्सा होगा इसका? मुफ्ती साहब 5 लाख खर्च करके एक हिस्सा होगा? क्या वाकई एक हिस्सा होगा इसका? नहीं होगा। हाँ। ये है तो बैल ना जी, है तो बैल। छोटी सी है ना। ये तो ये कह रहे हैं भाई छोटी सी है, एक हिस्सा करना है इनको। जी,
एक हिस्सा कर सकते हैं, अच्छा ये ले लें या कोई भी ले ले, सही है। और एक की तरफ से कुर्बान कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक से ज्यादा हो नहीं सकता, इसमें भी पूरे 7 होंगे जो बड़े जानवर में हो रहे हैं, अच्छा, उसमें भी 7 होंगे, इसमें भी 7 होंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा पिछले 7। प्रोग्राम में आपने बताया था कि गोश्त चाहे जितना हो, कद चाहे जितना बड़ा जी हो हाँ। जाए, उसमें 7 ही होंगे। जी हाँ, इसमें भी 7 ही इसमें होंगे। भी 7 होंगे। एक बार फिर सोचने मुझसे अरे इसमें सोचने वाली बात है। जैसे यहाँ पे एक और बात भी है, देखें जैसे छोटे जानवर को देखकर जो है वो हम बात कर रहे हैं उम्र की, जी। इसकी वजन या कद की बात नहीं कर रहे। इसी तरह कई दफा लोग जो है वो फोन कर रहे होते हैं मंडी में आके कि जनाब जानवर के 2 दांत तो नहीं है लेकिन देखने में बड़ा 1.5 डोल वाला है, बहुत बड़ा है, जबरदस्त बहुत है। बड़ा है। हाँ। तो दारोमदार इस पर नहीं है कि उसमें जो है वो गोश्त कितना है या उसका कद कितना बड़ा पिछले है। प्रोग्राम में हमने एक ऐसा जानवर हाँ। दिखाया था कि जिसके दांत अभी पूरे नहीं हुए थे। पूरे नहीं हुए थे, तो भले चाहे वो कितना ही 1.5 डोल वाला हो, अगर उसकी उम्र पूरी नहीं है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। और चाहे उसकी कद जो है वो इतना ही क्यों ना हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, उम्र पूरी है तो आप इसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं और इसमें 7 हिस्से भी कर डाल सकते हैं। चले जी, ये सोबान भाई सवाल करने के लिए शायद आए। जी सोबान भाई, आपको सवाल करना चाह रहे हैं। क्या इसकी हम रेस लगा सकते हैं? किसकी रेस लगानी है भाई? इसकी इसकी किसके साथ रेस लगानी है? आप लगाओगे इसके साथ? अच्छा, उसके साथ रेस लगानी है। जी मुफ्ती साहब, ये हम अमूमन गली मोहल्लों में देखते हैं कि जब कुर्बानी के जानवर हमारे इलाकों में आ जाते हैं तो एक तो बच्चों के लिए बताइए कि ऐसा अब्बू से या अपने बड़ों से ये सवाल करना या ये ऐसी जिद करना कैसा, और दूसरे नंबर ये बताएं कि जब लेकर आ गए हैं तो अब इसका रेस करवाना कैसा? देखें, अब्बू से जो कहना ज़ाहिर है, हर घर के ये शौक तो होते हैं कि हमारे घर में भी कुर्बानी हो। वाह वाह। और ये बेसिक तो ठीक है, बच्चे अगरचे शरई तौर पर उस तौर पर ना भी समझ रहे हो, लेकिन देख देख कर एक शौक पैदा। ये भी एक इस्लाम की खूबसूरती है ना कि उसके दिल के अंदर कुर्बानी का ज़ौक बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है। ये वाली अगर जिद है और मीठी जिद है, यूं के माँ बाप पे कोई इस तरह का बोझ नहीं है, सही है। तो जिन पर तो शरीयत ने वाजिब रखी कुर्बानी, उनको तो लेके आना ही आना है, यानी कुर्बानी करनी है। चाहे वो खुद बकरा लाएं, दुम्बा लाएं, या फिर वो अलग से अपने बड़े जानवरों में हिस्सा डाल लें, एक हिस्सा, जितने घर के अफराद हैं उतने। सही है। लेकिन ये है कि बहरहाल बच्चों को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर वाली से तकाजे करें। सही। ये ऐसी जिद नहीं करें कि भाई फलां भी लेके आया तो हमें उस तरह के लेके दें, तो इस तरह का ये मुनासिब नहीं है। दूसरा सवाल जो बच्चे ने पूछा था हमारे सोबान भाई ने, शायद रेस लगाने चले गए वो, तो क्या रेस लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? बेटा बचना इससे। जानवर जो है वो कुर्बानी का हो या कोई सा भी जानवर हो, तो हमें उनकी जो है वो आराम का ख्याल करना है और उन्हें तकलीफ से बचाना है। तो रेस के अंदर उमूमी तौर पर बच्चे जो है वो धूप ना देखते हैं, ना जो है वो जानवर की तकलीफ देखते हैं और उन्हें दौड़ा रहे होते हैं, तो यकीनन इसके अंदर जानवर के लिए जो है वो तकलीफ और जो है वो आजमाइश है, तो लिहाजा ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अच्छा जी भाई, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो भाई, ठीक हो आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। मोइन। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? इनका क्या नाम है? इनका कोई नाम है या नहीं है जी? शहजादा है। अच्छा जी, शहजादा तो मारने पे तुला हुआ है भाई। शहजादे साहब, आप यकीनन शहजादे होंगे, लेकिन हम भी किसी के शहजादे हैं भाई। ऐसा नहीं करो, हम आपकी बादशाहत लेने के लिए नहीं आए भाई। शहजादा तो नाराज हो गया है। ये कर क्या रहे वैसे इसके साथ, शहजादे के साथ आप? पहल पहना रहे। तो सब ये अपने जानवरों को बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, चूंकि इलाकों के अंदर एक रेस होती है कि जनाब हमारा जानवर अच्छा नजर आना चाहिए, खूबसूरत नजर आना चाहिए, तो उसे तरह तरह की सजावट का इंतजाम करते हैं। कोई गले में हार डाल रहा होता है, तो कभी जो है वो मोहरे उसके चमड़े के और महंगे से महंगे बना रहा होता है। तो ये इसराफ में आएगा या ये कुर्बानी के जानवर पर खर्च किया जा सकता है? देखें, इसराफ तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जानवर को खूबसूरत लगने के लिए, और लोगों के दिलों में भी, यानी अपने घरों में भी ज़ाहिर है, इर्द गिर्द भी कहीं वो हार इसको या जो भी इस तरह की चीज़ें पहनाते हैं, तो ये जायज़ है, इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। चमड़े का जैसे आप कहते हैं, कोई वो ला देते हैं, कोई ऊपर हार पहना देते हैं, सही, तो पहना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये इसके शहजादे के जो है वो सींग काटे हुए लग रहे हैं मुझे तो। ये भाई ये बताइएगा कि इसके सींग जो है ये आपने बनाए हुए हैं, क्या क्या हुआ, ये पैदाइशी ऐसे हैं? जब ये लिया था उस वक्त से पहले से यही है। उसके पहले से ही ऐसे हैं? मुफ्ती साहब, ये देखिएगा कि ये इसके सींग जो है ना, ये तो शायद बनाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने पहले जब लिया था तब से इसके सींग ऐसे हैं। अब इन्होंने बनाए हो या इनसे पहले वाले ने बनाए हो, क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? देखिए, सींग का हुक्म ये है कि जानवर का सींग जो कि बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाए। अच्छा, ठीक है, और वो जख्म जो है वो भरा ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है।
ये जो सींग है ना, ये जड़ इसकी सलामत है, सब कुछ है, ये ऊपर से काटे हुए हैं। सही। ये लोग खूबसूरती के लिए बाज़ काट देते हैं। अगर तो जानवर को इसमें तकलीफ ना हो तो फिर तो ये ऊपर से करने में वो हर्ज नहीं। लेकिन बाज़ सुनने में आया है कि जो जानवरों को सींग उसकी जड़ से भी निकालते हैं और भले वो जख्म भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बाकायदा ड्रिल चलती है और वो जानवर को अच्छा खासा जख्मी करते हैं। वो आज से 2 साल पहले का होगा, 1.5 साल पहले का होगा, अभी सही सलामत नजर आ रहा था, लेकिन वो लोग जो ये करते हैं तो वो शरन जायज नहीं, उसकी इजाजत नहीं। अगरचे कुर्बानी अब हो जाएगी कि जख्म भरी है, लेकिन बहरहाल जिन्होंने वो काम किया, जानवर पर जुल्म किया, बहरहाल वो गुनाहगार हुए, उन पर इसकी जो है वो तौबा लाजिम। चलें जी। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि कुर्बानी का जानवर जो है ना, ये बेऐब होना चाहिए, ठीक है, ये एक शरई हुक्म है कि बेऐब होना चाहिए। ये जो रस्सी की वजह से इसका देखें ये जख्म बन गया है और जख्म बन के ठीक हो गया है, अब इसको ऐब कहेंगे या नहीं, ये ऐब में शुमार नहीं होगा? अब ऐब फिर 2 तरह का है कि अगर थोड़ा बहुत ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर नापसंदीदा है, बचना चाहिए। बेहतर ये कि ऐसा जानवर लें जिसमें कोई भी ऐब ना हो, और अगर ऐब ज्यादा है तो फिर कुर्बानी नाजायज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कान जो है वो 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है, ठीक है, तो फिर कुर्बानी जायज 1/3 कितना होगा? मतलब ये देखें, ये पूरा हो गया, 33% हो गया, 33% तकरीबन इतना जी। अच्छा जी, जिसको कनकटा भी कहते हैं। हाँ, कनकटा भी कह सकते हैं, बसा औकात यहाँ से भी कटा हुआ होता है, बसा औकात और कहीं से भी जो है वो कट सकता है। तो 33% है कि अगर 33% उसके पूरे कान का, किसी जानवर के कान छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो उस एतबार से। अब जैसे ये जख्म है तो ये जो है वो इसके ऐब तो है, मगर ये ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से कुर्बानी जायज ना हो, बल्कि कुर्बानी इसकी हो जाएगी, जायज है कुर्बानी। सही। अगर जानवरों को जब लेके आते हैं ट्रकों में ये वो, तो कुछ ना कुछ, कभी खाल कहीं से थोड़ी सी कट जाना, कभी ये वो, तो ये उन बड़े ऐबों में नहीं शुमार किए जाते हैं कि जिनकी वजह से। हाँ, अलबत्ता जो लेके जाते हैं अब वो को थोड़ा तजर्बा होना चाहिए कि जैसे इसको जानवर को यहाँ से अब लोड करके लेके जाएंगे आगे। अब देखें यहाँ पे, देखें यूसुफ भाई, ये इन्होंने कितने एहतमाम से मट्टी ऊपर की हुई है इनके लिए, बिल्कुल नरम मट्टी अलग से। ये कैमरा मैन अगर दिखा रहे हैं तो ये पूरी एक एहतमाम क्या है, इनकी सहूलत का भी एहतमाम किया ना, यानी यूं इनके लिए कि एक तरह का फॉर्म बना दिया। सब बेचना है ना, इसके लिए इन्होंने एहतमाम किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इनका माल है तो ये इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं कि इनको कुर्बानी तक कोई इस तरह का मामला भी ना हो और सहूलत भी रहे। ये हमें पैगाम भी है कि हम भी जब अपने इलाके में ले जाएं तो फिर आप इनके आराम के लिए पके पके, इनको मार्बल नहीं चाहिए, इनको मट्टी चाहिए, इनको रोड पे पत्थर जो कंकरियां हैं उस पे बिठा दिया, उसी पे वो कर दिया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सहूलत वाला एहतमाम बहरहाल करना चाहिए। ठीक है। ये आप बिलखुसूस शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो पक्की ज़मीनें होती हैं, घरों के अंदर अपने बड़े बड़े घर होते हैं, उसके पक्के फर्श होते हैं और फिर इनको लाकर वहाँ पर रखा जाता है। सब बसाओं का देखा गया है कि फिर वो जब इस पर गंदगी करते हैं तो फिर उस पर वो फिसलना शुरू करते हैं, और जब फिसलते हैं और स्लिप हो जाते हैं तो फिर वो कभी उसकी टांग टूट जाती है, तो कभी उनको बड़े जख्म लग जाते हैं। तो फिर ऐसा अगर कभी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो गया हो, तो उनकी कुर्बानी का क्या होगा? क्योंकि वो तो पैसे खर्च कर चुके हैं और वो एक बार कुर्बानी का जानवर खरीद चुके हैं, और अब वो अगर जख्मी हो गया तो फिर क्या करें? देखिए, कुर्बानी का जानवर, जो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब है, उस शख्स ने कुर्बानी का जानवर खरीदा, वो बेऐब था, सही, लेकिन अब कुर्बानी से पहले जो है वो ऐबदार हो गया, सही, उसकी टांग टूट गई, बिल्कुल, तो अब ऐसी सूरत में आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। वो तो फिर पैसों का क्या होगा मुझसे? हाँ, वो पैसे आपके जो है वो, अब आप उसको चाहे जो है वो कस्साब को देकर जो है वो उसके पैसे अपने रिकवर जो है वो जितने होंगे वो होंगे, आपको दूसरा जानवर या हिस्सा डालकर कुर्बानी करनी होगी। हाँ, अलबत्ता एक इसमें पहलू ये है कि जिस वक्त आपने जानवर को ज़बाह करने के लिए गिराया, ठीक है, उस गिराने में वो जो है वो टूट गया, उसकी कोई टांग टूट गई, या जो है वो उसको जो है जब आपने उसको बिल्कुल आखिरी वक्त है टाइम के आप ज़बाह करने के लिए उसे गिरा रहे हैं, उस वक्त उसमें कोई ऐसा ऐब आ गया तो बहरहाल आपने उसी वक्त उसको ज़बाह कर दिया, तो अब ये कुर्बानी हो जाएगी कि वो ऐब उस वक्त जो पाया गया वो कुर्बानी के अंदर जो है वो रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन अगर उससे पहले हुआ तो फिर बहरहाल जो है वो, अगरचे आप उसी दिन कुर्बान कर दें, अच्छा, बस औकात यूं भी लोग कहते हैं ना कि भाई वो हो गया, चलो अब कुर्बानी कर देते हैं, तो अब बहरहाल जबकि आपने उसको जो है वो कुर्बानी करने के लिए गिरा नहीं रहे थे, वो वैसे ही किसी और वजह से गिर के उसमें ऐब पैदा हो गया, तो अब आप कुर्बानी कर भी देंगे तो आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी।
خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر شرعی رہنمائی لینی ہوگی، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دارالافتاء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء مختلف ممالک میں مختلف لوکیشنز پر موجود ہیں۔ آپ کالز کے ذریعے بھی اور SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات کر کے اپنے جوابات طلب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ نے پسند کیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے رنگ کے سنگ بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ۔ عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔